questions for you. Let's start practicing these MCQs for your UGC NET exam. I hope you are following these sessions. Those who have not done the very last one, the link is provided on the top. So the next question, that is question number 34. Which of the following are the main benefits of international trade? So there is a set of questions for you. ये सारे आपको पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से 1, 2 and here is 3 and 4. So if we look at all the four options, these all four are advantages of international trade. So your answer will be option D, 1, 2, 3, 4. Then question number 35. Which of the following assumptions are true in context of theory of comparative advantage? थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज में अगर हम देखें तो इनमें से कौन कौन सी चीज़ें सही हैं? टू ट्रेडिंग इकोनॉमीज ईच प्रोड्यूसिंग द सेम टू गुड्स, यस टू गुड्स होने चाहिए. द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन ईच इकोनॉमी आर परफेक्टली मोबाइल, yes this is also true. There are no trade barriers and no transport costs. क्या ऐसा है? ट्रेड बैरियर्स भी हैं और ट्रांसपोर्ट कोस्ट भी हैं, तभी तो आप उनको दो फैक्टर्स को देख रहे हो. सो ऑप्शन 3 नहीं है, अदरवाइज ऑल द ऑप्शंस, सॉरी ऑप्शन 3 इज देयर. Option 4 is also correct. The state of technology, there is no trade barrier. I thought it was a trade barrier. So ये option भी है, ये भी है. Factor of production मोबाइल नहीं है, मोबाइल नहीं होने चाहिए. अगर मोबाइल हुए तो इसका मतलब तो आप फैक्टर्स को कहीं भी यूज कर सकते हैं. सो ऑप्शन 2 नहीं है. सो योर ऑप्शंस आर 1, 3 and 4. सो इट इज गिवन इन योर ऑप्शन 1, 3 and 4. ऑप्शन सी इज योर आंसर ऑफ 35th. Then question number 36. International trade is theoretically based on which principle? Theory of comparative advantage के ऊपर based है, absolute advantage के ऊपर based है, both A and B or none of these. So we have discussed various theories. So absolute एडवांटेज थ्योरी तो पहले आई थी, उसके बाद कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी आई है. तो जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है वो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज पर बेस्ड है. ऑप्शन ए इज योर आंसर. दोनों थ्योरीज पर बेस्ड नहीं हो सकता. Then next question is, a country is said to have a comparative advantage in the production of goods when? Comparative advantage आपको कब होगी? When it can produce more of it than any other country, it has captured larger share, it can produce it at a lower opportunity cost than its trading partner. ये इसका ऑप्शन है, ऑप्शन सी, कि लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में वो उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं. नेक्स्ट Question 38. The existence of international trade is best explained by the fact. किस चीज़ में एग्जिस्टेंस में आपको ये लगता है कि इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पर ज़्यादा बेटर है? ऑपरेट विद देयर ओन यूनिक करेंसीज, implement varied economic systems from free markets to centrally planned economies, possess varying endowments of natural resource, labor, capital leading to differences in production capabilities. Yes, इंटरनेशनल ट्रेड तभी एग्जिस्ट करता है जहाँ पर दो कंट्रीज के बीच में डिफरेंसेस हो उनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज में. अगर सेम रहेंगी तो फिर इंटरनेशनल ट्रेड की ज़रूरत ही क्या है? आप ट्रेड तभी तो करते हो जब आपके ये लगता है कि हमारे यहाँ पर इस चीज़ की कमी है और दूसरी कंट्री में इस चीज़ की अबंडेंस है. तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. Moving to question number 39. What could lead to a decline in country's export? Means country के export इस चीज़ से कम हो सकते हैं. Let's have a look to all these options, students. A depreciation of country's currency, इसलिए वहाँ पर export कम है. A decrease in tariff barriers by the other, अगर दूसरी कंट्री ने barriers खत्म करे तो आप तो export और ज़्यादा करोगे, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा. A reduction in marginal propensity to import among trading partners, indicating they are less inclined to buy foreign goods. जो दूसरी कंट्रीज है वो ऐसा शो कर रही है कि उनको फॉरेन गुड्स कम खरीदना है, तो ऑब्वियसली इससे एक्सपोर्ट खुद ही कम हो जाएगा. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 40. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली कंसीडर्ड अ कंपोनेंट ऑफ कंपनीज इंटरनल इन्वायरमेंट? में ये नहीं आता है. कंपनी के मिशन ऑब्जेक्टिव ये आते हैं, कंपनी की ह्यूमन रिसोर्सेज ये भी इंटरनल है, कंपनी के कस्टमर इंटरनल नहीं होते, ये एक्सटर्नल है. सो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट. ये तो बहुत इजी था. 40 का आपका आएगा ऑप्शन सी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 41. कीपिंग इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लेविट थीसिस मीन्स. लेविट थीसिस का मतलब क्या है? अगर आप ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट्स मीनिंग योर ऑप्शन बी, देयर इज होमोजेनाइजेशन ऑफ सेम प्रोडक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड. एक प्रोडक्ट को आपको हर जगह सेम वे में बेचना है, होमोजीनियस रखिए.
Then the companies globalize their operations through different means. अलग अलग तरीकों से कंपनी अपना बिजनेस फैलाती है, और वो तरीके एक्सपोर्टिंग भी है, लाइसेंसिंग भी है, फ्रेंचाइजिंग भी है, जॉइंट वेंचर्स भी है. सो ऑल ऑफ द अबव इज its answer. Option D is the answer of question number 42. Then question number 43, which one of the following is not a feature of business process outsourcing? उसका ये फीचर नहीं है. तो कौन सा फीचर नहीं है? It enables executives to concentrate on strategy. ये बिल्कुल सही है. It improves process and save money. ये भी है. It decreases organization capabilities. No, it doesn't decrease. It increases. So option C is incorrect. ये इसका फीचर नहीं है. Then question number 44, who among the following has given absolute advantage model of international trade? किसने दिया था absolute advantage की theory? You have four options here. Adam Smith is the right answer. Adam Smith ने absolute advantage, the very first theory he gave to us. Now question number 45, consider the following statement. You have assertion and reason. You have to tell the right answer. So look at these. Indian companies have established subsidiaries, joint ventures in a number of countries. Yes, it's true. Reason, by restricting the areas of operation and growth, the government policy seriously constrained the potential of Indian economies to make a foray into the foreign countries. गवर्नमेंट्स ने इतना इजी कर दिया, इसलिए कंट्रीज जो है दूसरी कंट्रीज में जा रही हैं. रीजन और असर्शन दोनों सही है, बट यहाँ पर रीजन इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन. वो तो दूसरी गवर्नमेंट्स ने इंडियन कंपनीज के लिए इजी कर दिया, तभी वो वहाँ पर बिजनेस फ्लरिश कर रही हैं. ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. देन मूविंग अहेड, again we have two statements. Let's have a look. Statement 1, served from India scheme SFIS has been replaced with now service exports from India scheme SEIS. Yes, it's true. The rate of reward under SIS would be based on net foreign exchange earned. Yes, it's also true. So 46th में both the statements 1 and 2 is correct. Option D is your answer. नेक्स्ट 47, अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो हमारी पॉलिसी थी 15 to 20 के बीच में, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल पोर्ट्स आर अलाउड फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट? ये दो और पोर्ट मीन्स इनमें ये पोर्ट और आए हैं जो कि अब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर सकते हैं. सो विच दोज आर अमंग देम? कैलिकट एयरपोर्ट केरला वाला, राजकोट इन गुजरात, एराकोनम आईसीडी तमिलनाडु, लुधियाना एयरपोर्ट पंजाब. सो योर ऑप्शन ए एंड सी इज करेक्ट. केरला एंड तमिलनाडु में दो नए पोर्ट आए हैं. ओके, देन एग्जामिन द फॉलोइंग. योर ऑप्शन ए इज करेक्ट इन द अबव वन. मूविंग अहेड, question number 48, examine the following statements and choose the correct code. Statement 1 we have. Statement 2, companies with low cash reserves normally prefer licensing mode rather than foreign direct investment. Cash rich firms normally prefer foreign direct investment. Yes, both the statements are correct. Option A is correct. Then 49, वट डज काउंटर ट्रेड रेफर टू? काउंटर ट्रेड का मतलब क्या होता है? आपके पास ये चार ऑप्शंस हैं. अ ट्रेड मैकेनिज्म वेयर गुड्स आर एक्सचेंज डायरेक्टली फॉर अदर गुड्स विदाउट यूजिंग कन्वेंशनल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन. ये काउंटर ट्रेड, ट्रेड फॉर ट्रेड. सो आई थिंक 49 का आपका ऑप्शन ए ही राइट है. येस, इट्स द करेक्ट वन. 50th, globalization term has been described as to describe the process of removal of restriction. किस चीज में restrictions remove की गई हैं? फॉरेन ट्रेड में yes, इन्वेस्टमेंट में yes, both A and B. ऑप्शन सी इज करेक्ट. अब कोई भी रोक टोक ना फॉरेन ट्रेड में है ना इन्वेस्टमेंट में है, तो आपका ऑप्शन सी इसका आंसर होगा. Which of the following is an example of an issue for which an agreement has not been made between two or more countries? ओके, टू और मोर कंट्रीज के बीच में अगर कोई इशू होता है तो उसके रिगार्डिंग ये एग्रीमेंट है. इनमें से ये उसका एग्जाम्पल नहीं है, बाकी सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे एग्रीमेंट्स के. रेस्ट्रिक्टिंग हार्मफुल एमिशंस, डीप सी माइनिंग इन नॉन कोस्टल एरियाज ऑफ द ओशंस. यस, ये एग्रीमेंट नहीं है, बाकी सारे एग्रीमेंट है. प्रिजर्विंग एंडेंजर्ड स्पीशीज भी है. बैनिंग द यूज ऑफ सर्टेन पेस्टिसाइड्स भी एक एग्रीमेंट बना है. आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ बार्टरिंग इंटरनेशनली? बार्टर सिस्टम में ये इसका फीचर नहीं है. बार्टर कैन बी टाइम कंज्यूमिंग. यस, होता है टाइम कंज्यूमिंग. बार्टरिंग कैन बी एक्सपेंसिव. बिल्कुल. बार्टरिंग इज अ टाइप ऑफ सर्विस, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. नो, ये इसका फीचर नहीं. ऑप्शन सी इज नॉट द करेक्ट. सॉरी, सो ऑप्शन बी इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बार्टर इंटरनेशनली. ऑप्शन सी इज योर आंसर. 53, मैच करना है हमें. लुक एट दीज थिंग्स वेरी केयरफुली, ओनली देन यू कैन मैच देम. Here list 1 and list 2 items are given to you. Wider market,
वाइडर मार्केट मीन्स एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस कैपेसिटी, आपके पास ज़्यादा बिजनेस कैपेसिटी होगी इंटरनेशनली. टर्न की प्रोजेक्ट्स, दैट इज टर्न की प्रोजेक्ट्स हमने किया था. दीज आर द काइंड्स ऑफ द वेज थ्रू विच यू कैन एंटर इन द फॉरेन मार्केट. सो मोड्स ऑफ एंट्री, बी का आपका 1 रहेगा, तो ए का 3 है, बी का 1 है, आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर होगा. बाकी के दो आप मैच कर लीजिएगा. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 54th. The method being used for transferring complex technology is known as. जब टेक्नोलॉजीज का ट्रांसफर किया जाता है तो वो आपका टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है. और ऑप्शन सी इज द आंसर. जिन्होंने ये सेशंस मेरे साथ अच्छे से नहीं किए हैं, हमने इंटरनेशनल बिजनेस मोड्स ऑफ एंट्री में बहुत अच्छे से डीप डिस्कस किया था यूनिट 1. स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग कि कंप्लीट योर यूनिट 1. यूनिट 1 इज वेरी नेसेसरी. यूनिट 1 आपको इस चैनल पे नहीं गिवन है, इट वाज गिवन इन अनदर चैनल ऑफ माइन, दैट इज लर्न विद निशमन. वहाँ पर आपको यूनिट 1 मिलेगा, सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी. आई विल प्रोवाइड दैट चैनल्स लिंक ऑन द टॉप. देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55 वी हैव. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. असर्शन आपको गिवन है, रीजन आपको गिवन है. Read it carefully and then tell. International business has grown in more recent years. Yes, A true है. Growth through trade has increased, but growth through foreign direct investment increase नहीं हुई है. It's wrong. FDI तो और ज़्यादा increase हुए हैं. So option is assertion is correct. Reason is wrong, incorrect. Then 56th, which one of the following is not the benefit of MNCs to the host nations? MNC जो कि host nation में है, उनको इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता है. तो कौन सा फ़ायदा नहीं होता है? लेट्स हैव अ लुक. इंक्रीज इन सोशल एक्टिविटी, क्या इसमें ये हो सकता है? नो, ये ऑप्शन 1 ही इनकरेक्ट है. यही इसका बेनिफिट नहीं है. MNCs कोई सोशल एक्टिविटी में परफॉर्मेंस नहीं करती. वाई इज द प्रोजेक्ट इन इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्ड एज टर्न की प्रोजेक्ट? हम उसको टर्न की नाम क्यों देते हैं? So turnkey is why? Because it signifies a project where contractor fully completes the project to the point of operation before handing it over to the project owner. उसको देने की बजाय पहले वो पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, इसलिए इसको टर्न की प्रोजेक्ट बोला जाता है. EPCG की एब्रीवेशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? EPCG, एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्रेडिट गारंटी. नो, जिसने मेरे साथ ये किया है, EPCG इज एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड क्रेडिट गारंटी. प्रमोशन है, so option C is its answer. Question number 59. India suffered from deficit balance both in trade balance and net invisibles, hence took up a number of steps to manage this problem. Which one is not appropriate for this? उन्होंने काफ़ी, इंडिया ने अपने डेफिसिट को चेक करने के लिए काफ़ी स्टेप उठाए, तो इनमें से कौन सा स्टेप नहीं लिया गया? बाकी सारे लिए गए. करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी थी, लिबरलाइज्ड एक्सपोर्ट पॉलिसी कर दी गई, यूनिफाइड एक्सचेंज रेट किया, एक्सपोर्ट कंट्रोल नहीं करना था. एक्सपोर्ट कंट्रोल होते ही तो फिर तो हमें और डेफिसिट होता, तो ये इसका ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. देन नेक्स्ट वी हैव मैच. लुक एट केयरफुली. इंडिया एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये किसने दिया था? भगवती जे, जस्टिस भागवती. इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म. डेवलपमेंट प्लानिंग एंड इंडिया एक्सपीरियंस, चक्रवर्ती एस. सो ये आई थिंक आपके साइमल्टेनियसली दिए गए, पैरेलल आपका ये मैचिंग होगा. सो दिस इज ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर द अबव वन. 62. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैव बीन क्रिएटेड फर्स्ट टाइम इन द, कहाँ पर इनको इस्टेब्लिश किया गया था दिस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को? सो दे वर क्रिएटेड इन एग्जिम पॉलिसी 2000. उसके बाद SEZs को रिकॉग्नाइज किया गया. DFEC stands for DFEC. Look at it carefully. DFEC is duty free export credit. Option C is correct. ये abbreviations को ध्यान में रखिएगा, आपके UGC एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं. So with this we discussed all these questions, और इसके साथ आपका इंटरनेशनल बिजनेस का टॉपिक भी ओवर हो गया है. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आवर ऑफिशियल मेल एड्रेस इज learnwithnishman@gmail.com. Till then, keep watching and don't forget to subscribe, dear students. More you subscribe, more